ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲା ଯେ ଦ୍ରବଣ କ'ଣ, ଦ୍ରବଣର ଉପାଦାନ, ଦ୍ରବଣର ଧର୍ମ, ପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ, ଅପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କିମ୍ବା ଆୟତନର ଦ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଦ୍ରାବକରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ, ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କିମ୍ବା ଆୟତନରେ ଦ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଦ୍ରାବକରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଦ୍ରାବକରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତେବେ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଦିଆ ହେଇଛି କି ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ ଦିଆ ହୋଇଛି କି, କିମ୍ବା ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଦିଆ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଦ୍ରାବକର ପରିମାଣ ଦିଆ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ସମାନ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ଯେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଏବଂ ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣର ଅନୁପାତ ନିଆଯିବ। ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ। ଯଦି ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଦିଆ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ତେବେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଏବଂ ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣର ଅନୁପାତ ନେଲେ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ବାହାରିଯାଏ। କିମ୍ବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାହାର କରିପାରିବା ଯେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦ୍ରାବକର ପରିମାଣ। ତ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ସହିତ ଦ୍ରାବକର ପରିମାଣର ଅନୁପାତ ଯଦି ନିଆଯାଏ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ବାହାରିଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଗାଢ଼ତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତ। ତ এই ହିସାବରେ ଆମେ କିପରି ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ବାହାର କରିବା। ତ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତାକୁ 100 ଗ୍ରାମ ଦ୍ରବଣରେ ଗ୍ରାମ ପରିମାଣର ଦ୍ରବର ଉପସ୍ଥିତି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ
जो द्रवण दिया द्रवणर गाढ़ता को कौन करा जाए जे 100 ग्राम द्रवण रे ग्राम परिमाणर द्रव 100 ग्राम द्रवण रे ग्राम परिमाणर द्रवर उपस्थिति देखा जाए। तो द्रवणर वस्तुत्व और वस्तुत्व शतकड़ा अनुपात द्रवणर वस्तुत्व और वस्तुत्वर शतकड़ा अनुपात वस्तुत्वर शतकड़ा अनुपात समान किपरि बाहर करा जाए द्रवर वस्तुत्व एवं द्रवणर वस्तुत्वर अनुपात द्रवर वस्तुत्व डिवाइडेड बाय कौन करा जाए जे द्रवणर वस्तुत्वर अनुपात दिया जाए द्रवणर वस्तुत्वर अनुपात दिया जाए एवं 100 सहित गुणन करा जाए इंटू 100। उदाहरण स्वरूप जदि चीनीर शतकड़ा 10 मन करा जो चीनीर शतकड़ा 10 द्रवणर अर्थ चीनीर शतकड़ा 10 द्रवण तार अर्थ होची जे 100 ग्राम द्रवण रे 10 ग्राम चीनी द्रवीभूत होईची 100 ग्राम द्रवण रे 10 ग्राम चीनी द्रवीभूत होईची हला। तो अर्थ होची जे चीनीर शतकड़ा 10 द्रवण आम बुझिबा जे 100 ग्राम द्रवण रे 10 ग्राम चीनी मिसी रही। द्रवण रे चीनीर वस्तुत्व और वस्तुत्व शतकड़ा अनुपात द्रवण रे चीनीर वस्तुत्व और वस्तुत्व शतकड़ा अनुपात शतकड़ा अनुपात समान किपरि बाहर करा जिबा द्रव रो परिमाण केते 10 ग्राम डिवाइडेड बाय का सहित अनुपात बाहर करा जिवो द्रवण रो परिमाण केते 100 ग्राम इंटू केते 100 समान केते शतकड़ा 10 शतकड़ा 10 हैला। तो वर्तमान आम वस्तुत्व आयतनर शतकड़ा अनुपात जीवा वस्तुत्व और आयतनर शतकड़ा अनुपात आयतनर शतकड़ा अनुपात तो यही पद्धति रे कौन करा जाए द्रवणर गाढ़ता को 100 एकक आयतनर द्रवण रे कौन करा जाए एकक परिमाणर द्रवर उपस्थिति को नहीं केते परिमाणर द्रव रही सही द्रवर उपस्थिति को नहीं द्रवणर गाढ़ता प्रकाश करा जाए अर्थात 100 एकक आयतन रे द्रवर परिमाण को नहीं द्रवणर गाढ़ता बाहर करा जाए। तेबे द्रवणर गाढ़ता किपरि बाहर करबा द्रवणर वस्तुत्व ओ कौन करा जाए आयतनर शतकड़ा अनुपात आयतनर
শতকরা অনুপাত সমান দ্রবর বস্তুত্ব ডিভাইডেড বাই তা সହିତ অনুপাত নিয়াଯିବା দ্রবণর বস্তুত্ব ইনটু কোন করা যায় 100 সହିତ গুণন করা যায়। তো দ্রবর বস্তুত্ব এবং দ্রবণর বস্তুত্ব অনুপাত ইনটু 100। তো দেখুন 100 মিলিলিটর দ্রবণরে 10 গ্রাম চিনি দ্রবীভূত হয়েছিল। 100 ml যদি আমি দ্রবণ নেবা 10 গ্রাম চিনি মিশি যদি থিব 100 ml দ্রবণরে যদি 10 গ্রাম চিনি মিশি রহিলে তেবে চিনির বস্তুত্ব ও আয়তনর শতকরা অনুপাত आमे सूत्र प्रयोग करी बाहर करिवा जे द्रवणर गाढ़ता जेतेबेले आमे शतकड़ा रे प्रकाश करूछु समान। तो ई जगह रे नियाइबो जे द्रवर परिमाण केते 10 ग्राम डिवाइडेड बाय आम द्रवण जदि आमे देखिबा जे केते ml नियाइछि 100 ml नियाइछि। तो 100 ml रे आमे केते 10 ग्राम चीनी अर्थात द्रवण परिमाण होजे 100 ml इंटू केते 100 समान 100 ml 100 से कटिबा तो 10 शतकड़ा हेउची द्रवणर गाढ़ता 10 शतकड़ा हेउची द्रवणर गाढ़ता। तो ए हिसाब रे द्रवणर गाढ़ता निर्णय करा जाए। तो गोटे प्रकार हेउची वस्तुत्व और वस्तुत्वर शतकड़ा अनुपात एवं अन्य प्रकारटी हेउची वस्तुत्व आयतनर शतकड़ा अनुपात। तो आमे वर्तमान विभिन्न प्रकार द्रवण विषय आलोचना करिबा। तो प्रथमे आमे देखूं जे गोटे नया प्रकार द्रवण सस्पेंशन कौन नया प्रकार द्रवण होची सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जदि आमे देखिबा जे सस्पेंशन होची एक असमजातीय मिश्रण तारपरे तो जो द्रवर कणिका गुड़िक द्रवीभूत न होई द्रवण मध्य सबुआड़े भासमान अवस्था थाए। तो कणिका गुड़िक द्रवीभूत न होई भासमान अवस्था रही थाए याकू सस्पेंशन कहा जाए। तो सस्पेंशन होची जे यह एक असमजातीय मिश्रण। तो जो द्रवर कणिका गुड़िक कौन होता है द्रवण रे द्रवीभूत हो पारि न थाए एवं तो द्रवण मध्य भासमान अवस्था सबुआड़े भासी रही थाए। तो उदाहरण स्वरूप जदि कौन करा जाए गोटे ग्लास रे जल नहीं किछि जदि आमे चक गुंड ऊपर छाड़ी देबा तो चक गुंडटा जल ऊपर किछि समय भासी रहिबो जल सहित द्रवीभूत हो पारिबो नाही। तो याकू एक सस्पेंशन कहा जीवो।
ठीक सेहीपरि जलरे जदि किछि काठगुंड पका जाए तेबे काठगुंड मध्य जल उपरे भासी रहिबो। तेणु यह मध्य एक गोटे सस्पेंशन उदाहरण हो पारिबो। तो वर्तमान हम देखिबा जे सस्पेंशन धर्म। सस्पेंशन धर्म तो देखा जाऊ जे सस्पेंशन एक असमजातीय मिश्रण। प्रथम कहाई जे असमजातीय मिश्रण, तारपरे सस्पेंशन रो कणिका गुड़िकर व्यास केते 10⁻⁻7 रु 10⁻⁻5 मध्य थाए। कणिका गुड़िकर व्यास केते 10⁻⁻7 रु 10⁻⁻5 मध्य थाए हला। 10⁻⁻7 रु 10⁻⁻7 रु 10⁻⁻5 मीटर मध्य रही थाए। एगुड़ी को जदि आम देखा खाली आखिरे देखा जाए, खाली आखिरे देखा जाए जेपरी काठगुंड जलरे ऊपर छाड़िले कौन होता है, काठगुंड पानी रे भासीवा सहित आम आखि को देखा जाए। तो वर्तमान देखूं जे यार कणिका गुड़िक सस्पेंशन मध्य गति करुवा आलोक रश्मि गुच्छ को विच्छुरित करि पारे। तो जिते बेले सस्पेंशन मध्य आलोक को प्रवाहित करा जाए तो आलोक रश्मि को सस्पेंशन कणिका गुड़िक विच्छुरित करे। तेणु एथिरे आलोक रश्मिर गतिपथ देखा जाए। सस्पेंशन रे एथिरे आलोकर गतिपथ देखा जाए। कारण सस्पेंशन कणिका गुड़िक आलोक रश्मि थिबा कणिका गुड़िक ठारू बृहद अटे। तो सही कारण जिते बेले आलोक रश्मि सस्पेंशन रे गति करि थाए तो सस्पेंशन कणिका गुड़िक कौन करि थाए, आलोक रश्मि कणिका गुड़ी को स्कैटरिंग विचूरण करि थाए। फलरे सस्पेंशन द्रवण मध्य आलोकर गतिपथ आमको देखा जाए। तापरे सस्पेंशन गुड़ी को स्थिर भाव जदि रखा जिबा, जदि सस्पेंशन को आम हलचल न करी किछि समय स्थिर भाव जदि रखीदेवा तो सस्पेंशन रे थिबा कणिका गुड़िक कौन होता है, पात्रर निम्न अंश रे धीरे धीरे बसी जाए। तेणु सस्पेंशन अस्थायी अटे। तेणु सस्पेंशन अस्थायी अटे। तो देखा जे मन करा ग्लास रे जल नहीं चक गुंड उपरे जदि आम छाड़ीदेवा किछि समय चक गुंड भासीबो एवं जदि आम सही सस्पेंशन को गोटे स्थान रखी हलचल न करी रखीदेवा तेबे 2-4 घंटा पर देखा चक गुंड गुड़िक ग्लास रो निम्न अंश रे धीरे धीरे जाई बसिबा को लागिबो। तेणु कणिका गुड़िक पात्रर निम्न अंश रे बसई जाउथिबारु कौन कहा जाए, याकू अस्थायी कहा जाए। तो यार कणिका गुड़ी को जदि आम छण कागज बा परिश्रवण कागज बा फिल्टर पेपर नहीं जदि पृथक करिबा तेबे परिश्रवण पद्धति द्वारा
ସସ୍ପେନସନର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତିରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ। तो यह सब हूँ सस्पेंशन धर्म। तो सस्पेंशन धर्म प्रथम जानिला जे एगुड़िक असम जातीय मिश्रण। द्वितीय जानिला जे कणिका गुड़िकर व्यास जदि आम देखा सस्पेंशन कणिका गुड़िकर व्यास केते 10⁻⁻7 मीटर रु 10⁻⁻5 मीटर मध्य रही थाए। सही कारण आम सस्पेंशन में थिबा कणिका गुड़ी को आम खाली आखिरे देखि पारू। तापरे तो सस्पेंशन जदि आलोक रश्मि प्रवाह करा जाए सस्पेंशन कणिका गुड़िक कौन करिथांती आलोक रश्मि कणिका गुड़ी को विच्छुरण करिथांती। काहेकि जे सस्पेंशन कणिका गुड़िक आलोक रश्मि कणिका गुड़िक ठारू बृहत होइतिबारु आलोक रश्मि कणिका गुड़ी को पृथक आलोक रश्मि कणिका गुड़ी को विच्छुरण करि पारे। तेणु द्रवण रे आलोकर गतिपथ आमको देखा जाए। तापरे जदि आम देखिबा जे सस्पेंशन अस्थायी कहीं सस्पेंशन को जदि आम स्थिर भाव रखीदबा किछि समय पर कणिका गुड़िक देखिबा जे पात्रर निम्न अंश रे धीरे धीरे बसिबाकू लागिबो जहा फल रे सस्पेंशन टी भांगी जाए ताको सस्पेंशन कहा जाई पारिबो नाही। तेणु सस्पेंशन एक अस्थायी अटे। एवं शेष रे सस्पेंशन रे जो कणिका गुड़िक थाए तो सही कणिका गुड़ी को आम कौन करवा पृथक करि पारिबा छाणिकी छणा कागज रे परिश्रवण कागज रे फिल्टर पेपर माध्यम रे आम परिश्रवण पद्धति द्वारा कौन करा जाए जे द्रवण रे थिबा कणिका गुड़ी को पृथक करि पारिबा। अर्थात परिश्रवण पद्धति द्वारा सस्पेंशन कणिका गुड़ी को आम अलगा करि पारिबा। पिला माने तो आम आज द्रवणर गाढ़ता एवं सस्पेंशन कौन और सस्पेंशन धर्म विषय रे पढ़िला। तेबे नेक्स्ट वीडियो रे आम कलवेट कौन कलवेटाल द्रवण एवं कलवेट धर्म विषय रे आम पढ़िबा।